آج انشاءاللہ جس سورہ کی تلاوت ہوگی وہ سورہ شمس ہے، اور اس سورہ میں پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کو گواہ بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ انسانی نفس کو بھی گواہ بنایا ہے، کیونکہ جس طرح کائنات سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں میں تضاد ہے، اسی طرح تضاد خود انسانی نفس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جس طرح کائنات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو گواہ بنایا اور نفس انسانی کو گواہ بنایا، اسی طرح ایک تاریخی واقعے کو بھی گواہ بنایا ہے، یعنی کائناتی گواہی بھی ہے، نفسی یعنی انسانی نفس کی گواہی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تاریخی ایک واقعے کو بھی گواہ بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کون سا انسان یا کون سی قوم کامیاب ہے اور کون سا انسان یا کون سی قوم ناکام ہے، اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں اور ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، ناکامی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کامیابی کے راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے۔ یہ گویا اس سورہ کا موضوع ہے، اور یہی مضمون اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یعنی گواہ بنا کر کہتا ہے، فرماتا ہے والشمس وضحاها، اور گواہی ہے، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، اس کی چمک کی،
اس کے چڑھنے کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد جب سورج غروب ہو تب وہ چاند نکلتا ہے، والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، یعنی سورج کی روشنی ہمیں کب نظر آتی ہے؟ دن میں نظر آتی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں، چاند بھی موجود ہے، سورج بھی موجود ہے، لیکن اس کی روشنی نظر کب آئے گی؟ دن میں، اور چاند نظر کب آئے گا؟ رات میں۔ واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ والسماء وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں لفظ ماں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ماں کے معنی ماں 2 طرح کا ہوتا ہے، ماں جو کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی اس کو موصول کہتے ہیں، موصولہ، اور ایک ماں ہوتا ہے جو مصدر کے معنی میں دیتا ہے، جس کو مصدریہ معنی کہتے ہیں۔ اب دونوں میں سے جس کو بھی مراد لیا جائے گا تو ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، تو مفسرین دونوں طرف گئے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماں موصولہ ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے۔ اگر ماں موصولہ مانا جائے گا تو معنی یہ ہوں گے والسماء اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا۔ ایک ترجمہ یہ ہوا، یہ ماں موصولہ ہے، لیکن اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھا رہا ہے یا جن کو وہ گواہ بنا رہا ہے وہ سب کی سب اس کی مخلوقات ہیں، تو مخلوقات کو گواہ بناتے بناتے یا مخلوقات کی قسم کھاتے کھاتے وہ اپنی قسم کیوں کھانے لگا، اپنے کو گواہ کیوں بنانے لگا؟ اور پھر مخلوقات کی قسم پہلے کھا رہا ہے، مخلوقات کو پہلے گواہ بنا رہا ہے، اس کے بعد پھر اپنی قسم کھا رہا ہے یا اپنے کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو بہرحال بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں پر ماں موصولہ مناسب نہیں لگتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ مصدریہ ہے، تو مصدر ماں مصدریہ کا مطلب کیا کہ وہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے آیا یہ فعل ہے ماضی، آنا یہ مصدر ہے، کھایا فعل ہے، کھانا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اور دوسری ماں مصدریہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جس فعل پر آتا ہے اس فعل کی ندرت کو بھی بیان کرتا ہے، اس فعل میں جو تعجب خیزی ہے یا حیرت انگیزی ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو اگر یہاں پر مفسرین کے اس طبقے کی رائے لی جائے تو ترجمہ پھر اس طرح ہوگا والسماء وما بناہا اور قسم ہے یا گواہی ہے آسمان کی اور حیرت انگیز طریقے سے اس کے بنائے جانے کی۔ آسمان پر اگر آپ غور کریں تو آسمان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز واقعی تعجب خیز بھی ہے، حیرت انگیز بھی ہے۔ آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھیں، آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھیں، رات کی روشنی کو دیکھیں، صبح کی روشنی کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، آسمان پہ جو سیارے ہیں ان پر غور کریں، پھر ان کی نقل و حرکت پر غور کریں اور اپنے اپنے دائرے میں ان کے چکر لگانے کو غور کریں، اور پھر بغیر ستون و بغیر کھمبے کے اس کے تنے ہونے پر غور کریں، تو یہ چیزیں کیا حیرت انگیز نہیں ہیں؟ تو ماں مصدریہ یہ معنی جو ادا کر رہا ہے وہ ماں موصولہ سے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ خرابی بھی لازم نہیں آ رہی ہے کہ مخلوق کی قسم اللہ تعالیٰ نے پہلے کھائی
مخلوق کی گواہی پہلے پیش کی اور اپنی بعد میں کی. تو بہرحال مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے. تو والسماء وما بناها دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو بنایا, اور قسم ہے آسمان کی اور حیرت انگیز طریقے سے اس کے بنائے جانے کی. اسی طرح اس میں بھی ہوگا والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا, جس نے اس کو پھیلایا. اگر ماں کو موصولہ لیں اور ماں مصدریہ لیں تو معنی کیا ہوں گے؟ قسم ہے زمین کی اور حیرت انگیز طریقے سے اور اتنی ندرت کے ساتھ اس کے پھیلائے جانے کی. تو جس طرح آسمان پہ اگر آپ غور کریں تو ہر چیز حیرت ناک لگتی ہے, ویسے ہی زمین پر اگر آپ غور کریں تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. زمین پر بسنے والی مخلوقات, ان کی قسمیں, زمین کے نیچے کا پانی, زمین کے نیچے کے کیڑے, پھر زمین کے اوپر جو درندے ہیں, جو جانور ہیں اور جو چوپائے ہیں, پھر جو انسان ہیں, پھر جو کھیتی ہوتی ہے, کھیتی میں جس طرح غلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی بھی سینکڑوں قسمیں اگر آپ نکالنا چاہیں تو سینکڑوں قسمیں نکل آئیں گی. دال کی قسمیں بے شمار, پھر جو چاول ہے صرف چاول کی قسمیں بے شمار, پھر گیہوں کی قسمیں بے شمار, اس کے بعد باغات, اس میں لگنے والے پھلوں کی قسمیں دیکھ لیے, پھر سبزیوں کو دیکھ لیے, سبزیوں کا رنگ دیکھ لیے, سبزیوں کا ذائقہ دیکھ لیے, سبزیوں کا رس اور ان کی مٹھاس دیکھ لیے, ان کا کڑواپن بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان میں جو کھٹاس ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی پانی ہے اور کیا کچھ نہیں اس میں سے نکل رہا ہے. کیسے کیسے پھول, اسی میں پھول بھی نکل رہے ہیں, اسی میں کانٹے بھی نکل رہے ہیں, اسی میں تربوز بھی ہے اور اسی میں آم بھی ہے اور پپیتا بھی ہے, اسی میں چاول بھی ہے, اسی میں گیہوں بھی ہے, اسی میں دالیں بھی ہیں. پھر آپ سبزیوں پر غور کریں, ہر سائز کی سبزی ملے گی, ہر رنگ کی ملے گی, گول بھی ملے گی, لمبی بھی ملے گی, چپٹی بھی ملے گی. یہ سب زمین کی یہ سب چیزیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں کیا یہ حیرت میں نہیں ڈالتی ہیں؟ تو اگر مصدریہ اس کو مراد لیا جائے تو معنی اس طرح نکلیں گے والسماء وما بناها قسم ہے زمین کی اور زمین کے حیرت انگیز طریقے سے بنائے جانے کی, اور قسم ہے اس کی آسمان کی اسی طرح اور اسی طرح زمین کی, زمین کے بچھائے جانے کی, آسمان کے بنائے جانے کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اب گواہی کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کے نفس کی. وَنَفْسٍ اور گواہی ہے کس کی؟ قسم ہے کس کی؟ انسانی نفس کی. وَمَا سَوَّاهَا اب اگر ما موصولہ لیں تو معنی یہی نکلیں گے, اور اس ذات کی, اس ذات کی جس نے اس کو مکمل طریقے سے, درست طریقے سے بنایا. سواہا پوری طرح سنوار دیا, پوری طرح مکمل کر دیا, پوری طرح ٹھیک ٹھاک اور درست طریقے سے بنا دیا. یہ معنی سوا میں آتے ہیں. ایک ہے پیدا کرنا, اور پیدا کرنے کے بعد اس کو درست کر دینا, اس کو سنوار دینا, اس کو بہتر شکل دینا. قسم ہے اس کی, اس نفس کی اور اس ذات کی. اور اگر ما مصدریہ لیں تو معنی کیا نکلیں گے؟ قسم ہے نفس کی اور درست طریقے سے, بہتر طریقے سے, مکمل طریقے سے اس کے بنائے جانے کی, اس کے سنوارے جانے کی, ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو بنائے جانے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ایک کام ہے بنانا, وہ کام ہو گیا, پیدا کر دیا, اس کو بنا دیا, اس کو سنوار دیا, اس لائق اس کو بنا دیا جو کام اس سے لیا جانا ہے. فَأَلْهَمَهَا پھر فوراً ہی اس نفس میں اس نے فجور کا مادہ بھی رکھ دیا اور تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا. یعنی اس میں بدی کا مادہ بھی رکھ دیا اور نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا, خیر کا مادہ بھی رکھ دیا اور شر کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر
जिस तरह कायनात में तजाद रखा है, दिन के साथ रात है, चांद के साथ सूरज है, आसमान के साथ जमीन है, उसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स के अंदर मुतजाद रुझानात, मुतजाद मैलानात, मुतजाद कैफियत, मुतजाद सिफात अल्लाह ताला ने वदियत फरमा दी हैं। अब गौर करने की बात क्या है कि कायनात की हर चीज एक दूसरे से मुतजाद है, लेकिन क्या कोई टकराव है? क्या कभी आपने सुना कि जमीन कहे कि भाई मुझे नीचे क्यों रखा, मैं ऊपर जाऊंगी? या कभी आसमान कहे कि मैं खड़ा खड़ा तना तना थक गया हूं, मुझको भी जरा जमीन की तरह बिछा दिया जाए, कुछ आराम का मौका मिल जाए? या कभी सूरज ने कहा कि नहीं मैं रात में निकलूंगा? या कभी चांद कहे कि मैं दिन में तुलू हूंगा? क्या इस तरह की कोई खबर आपने कभी सुनी? कभी इस तरह के कोई झगड़ा सामने आया? कभी इस तरह की कोई कशमकश इस कायनाती निजाम में नजर आई? तो इंसान आखिर क्यों उसमें ये कशमकश क्यों नजर आती है? वो क्यों एक दूसरे से इस तरह के मामलात में मुकाबला करता है? वो क्यों टक्कर लेने की कोशिश करता है? क्यों झगड़ा करता है? क्यों लड़ाई लड़ता है? क्यों अपनी हद में नहीं रहना चाहता? क्यों दूसरे के पाले में घुसना चाहता है? तो ये गौर करने की दावत दी जा रही है। अब यहां पर इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स के अंदर खैर और शर दोनों को रख दिया, क्योंकि इंसान मजमुआ है। देखिए, एक मखलूक अल्लाह ताला की है जिसको हम फरिश्ता कहते हैं, एक मखलूक है जिसे हम शैतान कहते हैं, एक मखलूक है जिसे हम इंसान कहते हैं। फरिश्ते बुराई नहीं कर सकते, शैतान अच्छाई नहीं कर सकता। फरिश्तों के अंदर खैर ही खैर है, नेकी ही नेकी है, इताअत ही इताअत है, फर्मा बरदारी ही फर्मा बरदारी है, ताबेदारी ही ताबेदारी है। उसके मुकाबले में शैतान है, नाफरमानी ही नाफरमानी, बगावत ही बगावत, सरकशी ही सरकशी, मुखालिफत ही मुखालिफत, बदी ही बदी, शर ही शर। ये वो उसका मिजाज है, वो फरिश्तों का मिजाज है। और इंसान में अल्लाह ताला ने शैतानी सिफात भी रखी हैं और मलकूती सिफात भी रखी हैं। वो उसके अंदर खैर और शर दोनों को रख दिया है और इख्तियार दे दिया है, और खैर और शर में तमीज की सलाहियत भी पैदा फरमा दी। सिर्फ इतना नहीं किया कि खैर और शर रख दे और नेकी और बदी रख दे, अच्छाई और बुराई उसके अंदर वदियत कर दे, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने खैर और शर में तमीज का सलीका भी अल्लाह इंसान के अंदर पैदा कर दिया है। यानी इंसान की ये फितरत है कि वो अच्छाई को अच्छा कहेगा, बुराई को बुरा कहेगा। मिसाल के तौर पर फुजूर में कीना आ जाएगा, हसद आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, लड़ना आ जाएगा, बदकलामी आ जाएगी, चोरी आ जाएगी, डकैती आ जाएगी, जिना आ जाएगा, शराब का पीना आ जाएगा। ये सारी चीजें आएंगी नहीं आएंगी बदी में? कोई एक इंसान बता दीजिए कि जो इन चीजों को अच्छा कहता हो, उसके मुकाबले में आप अच्छाइयां लीजिए। कोई इंसान बता दीजिए जो उन अच्छाइयों को बुरा कहता हो। क्यों? फितरत। फितरत हदीस शरीफ में क्या आया? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर शख्स, हर बच्चा जो दुनिया में आता है वो फितरत सलीमा के साथ आता है। बात का जो माहौल है वो उसको क्या बनाता है? कुछ से कुछ बना देता है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें रखी तो हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने उसके अंदर इस बात की तमीज भी पैदा फरमा दी है कि देखो अच्छाई अच्छाई है, अच्छाई का नतीजा अच्छा निकलेगा, बुराई बुराई है, बुराई का नतीजा बुरा निकलेगा। ये इंसान के अंदर ये सलाहियत भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी है। साथ साथ नबी भेजकर उसकी और वजाहत फरमा दी, आसमान से किताब नाजिल करके और उसको खोल दिया और उसको वाज़े कर दिया, और फिर उसी फितरत सलीमा पर उसको दुनिया में भेजा। अब उसके बाद भी अगर वो खराब रास्ता इख्तियार करता है, बदी को खैर पर या नेकी पर तरजीह देता है, शर को खैर पर तरजीह देता है, तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अल्लाह ताला ने दोनों चीजें रखी और फरिश्तों को भेजा, किताब नाजिल की और उसकी फितरत भी खैर पर रखी। अब उसके बाद अगर वो खैर को छोड़ता है, नेकी को छोड़ता है,
अच्छाई को छोड़ता है और शैतान के रास्ते पर चलता है, जिसके बारे में जानता है कि वो खुदा का दुश्मन है, निकाला हुआ है, वो बागी है, सरकश है, तो क्या ऐसे इंसान को माफ करना चाहिए या उसको सजा देनी चाहिए? यहां पर खुद छोड़ दिया गया। खुद अपना मुहासबा कर लें, खुद अपना जायजा ले लें, अपनी जिंदगी को देख लें कि अल्लाह ताला ने तो दोनों चीजें रखी और आपको बता भी दिया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजकर और इस मसले को वाज़ेह कर दिया, आसमान से किताबें नाजिल करके उसको और उसकी तौज़ीह फरमा दी। उसके बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, आपको हवास दिए, आपको जहन दिया, आपको इल्म दिया, आपको अक्ल दी, आप क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो ये गलती फिर आपकी है। फिर आपकी जो पकड़ होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि पकड़ गलत हो रही है, मैंने क्या किया, मैंने कौन सा जुर्म किया। तो ये समझने की जरूरत है। उसके बाद फरमाया कद अफलाह मन ज़क्काहा। अब जो गवाहियां दी गई या जो कस्में खाई गई, वो असल मजमून अब आ रहा है कि जिस पर गवाह बनाया गया इस कायनात को, जिस पर गवाह बनाया गया नफ्स इंसानी को, जिस पर गवाह बनाया जा रहा है एक तारीखी वाक़े को, कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, कि कामयाब हो गया कौन? मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को, यानी इस नफ्स को जिसमें अल्लाह ताला ने खैर और शर दोनों वदियत फरमा दिए हैं, जिसने उसको पाक कर लिया गुनाहों से, रज़ाइल से, गुनाहों की आलूदगी से, वो शख्स क्या हुआ? पाक हो गया। यानी जिस शख्स ने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया, साफ कर लिया, उसको चमका दिया और नेकियों के रास्ते पर वो चला, वो शख्स कामयाब है। और वखद खाबा, और वो शख्स नाकाम है जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर दिया, जिसने गुनाहों का रास्ता इख्तियार किया, जिसने खैर पर शर को तरजीह दी, नेकी पर बदी को तरजीह दी, अच्छाई पर बुराई को तरजीह दी। उसने गोया अपने नफ्स को आलूदा कर दिया गुनाहों से, उसने अपने नफ्स को गोया मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में छुपा दिया। अब यहां पर ये जो नफ्स के बारे में बात कही जा रही है और उस नफ्स को सामने रखकर इंसान की कामयाबी और नाकामी को वाज़ेह किया जा रहा है और कामयाबी और नाकामी के असबाब बयान किए जा रहे हैं, तो उससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि नफ्स की कितनी अहमियत है और नफ्स की कितनी फिक्र की जरूरत है, क्योंकि यही नफ्स हमें कामयाबी से हमकरार करेगा, जन्नत में पहुंचाएगा, और यही नफ्स हमें नाकाम करेगा और जहन्नम के रास्ते पर हमें डाल देगा। इसीलिए एक जमाना था कि खानकाहें होती थी, बुजुर्गान दीन हुआ करते थे और लोग उनके पास जाते थे अपने नफ्स का इलाज कराने के लिए, नफ्स को गुनाहों से पाक करने के लिए, अपने नफ्स को संवारने के लिए, अपने नफ्स को नेकियों के जरिए चमकाने के लिए जाया करते थे। महीनों सालों उनकी सोहबत में रहते थे, वहां उनकी तरबियत होती थी। नफ्स की तरबियत बहुत अहमियत रखती है। सबसे कम तवज्जो इस दौर में नफ्सी की तरफ है। इल्म मदारिस हैं, तालीम गाहें हैं, दानिश गाहें हैं, तालीम दी जा रही है, कुरान की भी तालीम दी जा रही है, हदीस की भी तालीम दी जा रही है, फिक्र की भी तालीम दी जा रही है, लेकिन नफ्स पर तवज्जो सबसे कम है। नफ्स की तरबियत को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। यह पहलू जो हमारी जिंदगी का अजीम तरीन पहलू है और इसी पर हमारी कामयाबी और नाकामी का दारो मदार है। सबसे ज्यादा गफलत इसी नफ्स से बढ़ती जा रही है। अक्ल को रोशन करने की, अक्ल को जिला बख्शने की, अक्ल को चमकाने की, अक्ल को इनके जेवर से आरास्ता करने की तो बहुत कोशिशें हैं, लेकिन नफ्स संवर जाए, नफ्स का वो जंग दूर हो जाए, नफ्स में जो सियाह धब्बे पड़ गए हैं उन सियाह धब्बों से उसको साफ कर दिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। ये कुछ बुजुर्गान दीन पहले थे, वो इस बात का ख्याल करते थे और लोग वहां जाते थे इसी नफ्स को रज़ाइल से और गुनाहों से
पाक करने के लिए। एक छोटा सा वाकया, उससे अंदाजा होगा कि नफ्स की खराबियां क्या क्या हैं, वो खराबियां जिनकी तरफ हमारा जहन भी नहीं जाता है। और बुजुर्गान दीन और सूफिया किराम की नजर उन चीजों पर पड़ती है जो चीजें आदमी को गलत रास्ते पर डाल देती हैं और उसे एहसास भी नहीं हो पाता है। एक बुजुर्ग का वाकया आता है कि एक साहब बड़े रईसजादे थे, वो उनकी खिदमत में गए अपने नफ्स ही को लेकर, रहने लगे। जैसे डॉक्टर होता है कि वो मरीज को देखकर मरीज के मरज की तशखीस करता है, फिर उस मरज का इलाज करता है। इसी तरह अल्लाह वाले होते थे, बुजुर्गान दीन होते थे, वो भी आदमी को देखकर उसके नफ्स को पढ़ते थे और उसके नफ्स को पढ़ने के बाद उस नतीजे तक पहुंचते थे कि इस नफ्स की असल बीमारी क्या है, असल रोग क्या है। अगर वो बीमारी दूर हो गई और वो रोग खत्म हो गया तो बकिया सब चीजें इसके अंदर अच्छी हैं, फिर बहुत तेजी के साथ ये नफ्स तरक्की करेगा, बहुत तेजी के साथ इसका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत होता जाएगा, बहुत तेजी के साथ ये गुनाहों की उस दलदल से बाहर आ जाएगा। तो वो समझ गए कि बड़े घराने के हैं, इनका नफ्स का रोग तकब्बुर है, घमंड है, क्योंकि पैसे वाले हैं, हैसियत वाले हैं, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, रईसजादे हैं। इनका रहन सहन, इनका तौर तरीक बता रहा है कि ये अपने को जरा दूसरों से अलग समझते हैं। अब देखिए तरबियत, वो जानते हैं कि ये चोर, देखिए वो चोरी नहीं करते, वो जिना नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, और बहुत सी जितनी खराबियां वो उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, वो तो उनके अंदर अच्छाइयां मौजूद हैं। जो असल खराबी है वो देखिए उन्होंने पकड़ी। उन्होंने एक उनके यहाँ जो काम करने वाला मेहतर था, उससे कहा कि तुम ऐसा करना कि जब गुजरो तो थोड़ा सा हल्के से इनसे टकरा जाना, इस तरह टकराना कि तुम्हारा वो टोकरा जिसमें गंदगी होगी, कूड़ा करकट होगा, वो इनके ऊपर गिर जाए। तरबियत का अंदाज देखिए। वो आदमी गुजरा, ठोकर लगी, टोकरा उसका गिरा इनके ऊपर, बस आपे से बाहर हो गए। जितना सुना सकते थे सुनाया, दो चार थप्पड़ भी लगा दिए, बात आई गई। अगले दिन वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसको बुलाया आदमी को और उससे पूछा भाई क्या हुआ कल, तो उन्होंने कहा कि कल ऐसा ऐसा हुआ कि मैं टकराया, कूड़ा इनके ऊपर गिरा और इन्होंने मुझे 10 बातें सुनाई और मुझे मारा भी। उन्होंने कहा ठीक है, उनको नहीं बुलाया। अब तरबियत हो रही है, बताया जा रहा है कि तवाज़ो क्या चीज होती है, इंकिसारी क्या चीज होती है, और ये तवाज़ो अल्लाह से जोड़ती है, तवाज़ो अल्लाह से करीब करती है। यानी अब उनकी सारा दर्स बुजुर्ग का किस पर हो रहा है, तवाज़ो पर, इंकिसारी पर, और गरीबों के साथ हमदर्दी करने पर, गरीबों के साथ खैरखाही करने पर, उनके साथ हुस्न सुलूक पर, अखलाक को संवारने पर। पूरा दर्स अखलाकियात का हो रहा है। कुछ दिन के बाद कहा कि अब फिर तुम वही हरकत करो। वो गया, फिर टकराया, फिर टोकरा गिरा और फिर उन पर कूड़ा आया। अब उन्होंने क्या किया, मारा नहीं, बुरा भला भी नहीं कहा, बस घूर के देखा, आंखें निकाल के लाल करके, लाल पीली करके उसको देखा घूर के। इतनी तब्दीली देखी आई। खैर फिर बुलाया, पूछा भाई क्या हुआ आज, कहा कि गए थे आज उन्होंने ना मारा ना कुछ कहा सुना, बस हाँ घूर के बहुत कस के देखा। क्या ठीक है। फिर इसी तरह दिन गुजरते गए, तरबियत हो रही है। अब कहा कि अब जरा जाओ, वही काम फिर करो। खैर वो पहुंचा, फिर वैसे ही टकराया, फिर टोकरा गिरा, कूड़ा उनके ऊपर आया। अब की बिल्कुल अजीब व गरीब, बजाय इसके के मारते, बजाय इसके के गालियां बकते, बजाय इसके के घूर कर देखते, एकदम से झुके और कहने लगे माफ कीजिएगा, मेरे टकराने की वजह से आपका टोकरा गिर गया, लाइए मैं उठा देता हूं। इस हद तक कहां से देखिए वो शख्स चलता है और कहां तक पहुंचता है। सारा गुरूर, सारा घमंड, सारा तकब्बुर चंद महीनों में क्या हुआ, दिल से उनके निकल गया। ये होती है नफ्स की तरबियत। तो आज भी इसकी जरूरत है। अब अगर ऐसी जगह नहीं है तो कुरान करीम मौजूद है, अहादीस मौजूद है, उनका मुताला करें, उससे भी बहुत कुछ आपका नफ्स जो है उसमें जो जंग लग रहा है वो दूर होगा। जो धब्बे पड़ रहे हैं वो धब्बे भी साफ होंगे, बशर्ते कि कुरान करीम
को इस तौर पर पढ़ा जाए कि ये हमारी नफ्स की, इससे हमारी तरबियत होगी, ये हमारे नफ्स को संवारने में मदद देगा, इससे हमें ये फायदा होगा। जिस नीयत से पढ़ेंगे वो नीयत भी पूरी होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ने के साथ वाकयात का इल्म हो जाए, मसाइल का इल्म हो जाए तो ठीक है, मसाइल का इल्म हो जाएगा, वाकयात का इल्म हो जाएगा, तौहीद का अकीदा मजबूत हो जाएगा, रिसालत पर आपका ईमान मजबूत हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो पहलू है नफ्स का, ये अधूरा रहेगा, ये नाकिस रहेगा। तो कुरान करीम का मुताला इस तरह भी करना चाहिए कि हमें अपने नफ्स की इस्लाह उसकी रोशनी में करना है। कुरान करीम में जो वाकयात हैं, कुरान करीम में के जो अहकाम हैं, उनकी रोशनी में हमें अपने नफ्स को पढ़ना है, नफ्स को समझना है, और नफ्स के उस जन को दूर करना है, और नफ्स के उस दाग धब्बों को साफ करना है। ये भी बहुत जरूरी काम है जिसकी तरफ तवज्जो हमारी कम हो पाती है। तो बहरहाल ये जो फरमाया कद अफलहा मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हुआ जिसने नफ्स को पाक कर लिया, तकब्बुर से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, गुस्से से, जो भी नफ्स के रोग हैं उनसे पाक किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, उसने पाक नहीं किया, वो गुनाहों में वैसे ही, गुनाहों की दलदल में धंसा रहा, वैसे ही बदी और बुराई और शर के रास्ते पर चलता रहा, तो वो गोया दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। अब उसके बाद वो तारीखी जो वाकया है वो यहां पर बयान किया जा रहा है। कज़्ज़ब समूद बितग़वाहा, कि कौम समूद ने झुटलाया, नबी को झुटलाया, खुदा की वहदानियत को झुटलाया, जन्नत दोज़ख को झुटलाया, बितग़वाहा, अपनी सरकशी की बिना बुनियाद पर। और ये सरकशी काहे की थी? ये नफ्स की सरकशी थी। इज़ बाअस अशक़ाहा, कि जब उनमें का एक आदमी खड़ा होता है, और उस आदमी को कुरान करीम कह रहा है बदबख्त तरीन आदमी। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, जब वो खड़ा होता है, क्योंकि वाकया क्या था, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, कौम समूद की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उनकी कौम ने यह कहा कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप कोई मौजज़ा ना दिखलाएं। मौजज़ा तय हुआ, ऊंटनी की शक्ल में पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकलती है। अब जब वो निकली, और मौजूदा के बारे में आता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से मौजूदा दिखला दिया जाए कौम के मुतालबे पर, और उसके बाद वो ईमान न लाए, तो फिर अजाब आना तय होता है। अब जब वो ऊंटनी निकल आई, कज़्ज़बत, तो बजाय ईमान लाने के झुटला दिया गया। अब जब वो ऊंटनी निकली तो ऊंटनी का अपना एक निजाम था। ऐसी ऊंटनी मौजूदे की शक्ल में सामने आ रही है, तो जब पानी पीती थी तो दूसरा कोई जानवर पानी नहीं पी सकता था। तो यह तय हुआ कि एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन दूसरे जानवरों को पानी पिलाया जाएगा, और दूसरे जानवरों को जब पानी पिलाया जाएगा तो ये ऊंटनी पानी नहीं पिएगी, और जब ये ऊंटनी पानी पिएगी तो कोई पानी नहीं पिएगा। तो अब क्या करेगा? तो ऊंटनी का दूध पिएगा, ठीक। लेकिन एक शख्स खड़ा होता है और वो उस ऊंटनी को कत्ल कर देता है, जबकि सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि इसको छेड़ना नहीं, इसको कुछ करना नहीं, ये तो एक मौजज़ा है, ये अल्लाह की ऊंटनी है। लेकिन उसके बाद भी उस बदबख्त ने क्या किया? फ़अक़रूहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम। चुनाचे जो फिर उसका जो नतीजा निकलना था, अल्लाह ताला का अज़ाब आया उनके गुनाहों की पादाश में, फ़सव्वाहा, और वो पूरी की पूरी बस्ती ज़मीबोस कर दी गई। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और अल्लाह ताला डरता नहीं अंजाम से कि क्या फिर नतीजा निकलेगा, क्या अंजाम होगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इसकी कोई परवाह अल्लाह ताला को नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।